guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and are also in good health and wealth. टाइटल देख के तो समझ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है, because as you can see मेरे हाथों में है beautiful nail extensions and let's just say that these look like really good, like when you're talking, when you're pairing these with outfits and everything, like तुम्हारा confidence सातवीं आसमान पे होता है. But let's talk about how it actually feels to live with them. And I have lived with these extensions for more than 3 weeks. I've attended a wedding, I've gone to the gym, I've traveled, I've lifted heavy luggage, I've cooked, I've cleaned, and yeah, I mean, you know, things can get a bit hard with these extensions. So today I'm not going to romanticize anything. I'm going to do a proper breakdown of why I got these extensions, the differences between these extensions, if it is really healthy for our nails, and if it is suitable for normal people like us, and what is my experience with these extensions, because it's been more than 3 weeks. So you know, if I'm planning to do this again, or you know, if I'm not planning to do this again, why, the pros, cons, everything. So सबसे पहले let's talk about why I got these extensions done. Actually I would have been more comfortable if I would have just kept the mic here and you know मैं बात कर पाती थी, but suddenly इन लोग you know ढाम 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 आवाज करते हैं, you know आवाज आता है, तो जितना हो सके अगर मैं नजदीक रखा तो you know the voice can be eliminated. So let's just try. So I got these extensions because मेरा birthday था last month and I thought you know perfect time है extensions try करने का. Actually I got influenced by my friend क्योंकि उसने try किया था on her birthday and I was like you know what, मुझे मेरे birthday के time try करना है. And she was like yes babe get it done, but then I got my periods and I was sick so I couldn't go. Then क्या हो गया, ये month मेरे cousin का शादी था and I thought you know अभी perfect time है to get the extensions done क्योंकि इतने सारे functions है you know and I can like get these get the colors you know matched with my outfits and everything. But the thing is मैं थोड़ी डरी हुई थी because I'm not a very soft, elegant and slow person. I'm very fast and I'm very aggressive. ठीक है, मैं सब कुछ धड़ 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 करके करती हूँ thanks to my ADHD. तो मुझे डर था कि भाई is getting extensions a good idea क्योंकि I have to be very careful you know. And मेरे जो normal nails है ना बड़े हैं, ठीक है, like अभी जो ये है एक्सटेंशंस, तो मेरे नॉर्मल नेल्स भी इतने बड़े हैं बट द प्रॉब्लम इज ब्रिटल है, तो बहुत जल्दी टूट जाता है. सो आई वाज लाइक यू नो लेट्स जस्ट गो फॉर इट एंड माय क्यूरियोसिटी कुड समटाइम्स यू नो स्केयर मी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ नेल एक्सटेंशंस क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था कि कौन से टाइप के होते हैं. मैंने सुना था बट एवरीथिंग लाइक जस्ट वेंट ओवर माई हेड. ठीक है, तो मैंने मेरी फ्रेंड को ही बोला कि भाई तू जो सैलून में गई थी करवाने के लिए मुझे वहाँ पे ही जाना है बिकॉज देर आर गुड नेल आर्टिस्ट अराउंड मी. बट मुझे नहीं पता था कि क्या जाके क्या बोला. मैंने 1000 वीडियोस देखे थे बट सब कुछ मेरे सर के ऊपर चला गया. तो शी वाज लाइक यू नो व्हाट जस्ट कम विद मी, द रेस्ट विल बी डन, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, जब मैं वहाँ पे गई विद माई फ्रेंड टू दी नेल आर्टिस्ट तब मुझे समझा कि 3 से 4 टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं एंड हमें हमारे प्रेफरेंस, हमारा लाइफस्टाइल, जो हम डेली जो अपने चोर्स एंड ऑल करते हैं उसके हिसाब से डालना चाहिए. तो सबसे पहले शी टोल्ड मी एक्रिलिक एक्सटेंशंस होते हैं. अब एक्रिलिक नेल्स क्या होता है, इट्स बेसिकली you know it is done by mixing powder and liquid together. ठीक है, and it's very hard क्योंकि बहुत ही hard ये है वो, and आपके नेल्स पे ना एक बहुत ही हार्ड ये बनता है. ठीक है, एंड इट इज गुड फॉर पीपल जो बहुत रफ है विद देयर हैंड्स लाइक मी. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कैसा ना, वो जब तुम्हारे हाथ पे बैठता है, ये मेरे बाकी फ्रेंड्स ने बोला था जिन्होंने एक्रिलिक ट्राई किया था, जब वो तुम्हारे हाथ पे बैठता है इट कैन फील वेरी हैवी ऑन योर हैंड्स. इट कैन लाइक यू कैन फील दैट वेट. ओके, एंड बहुत ही ऐसा अनकंफर्टेबल फील होगा. यू वोंट फील लाइक तुम्हारे नेचुरल नेल्स है, लाइक तुम कुछ भी ऐसा करोगे तुमको फील होगा कि यार कुछ तो हाथ में चिपका हुआ है करके. ठीक है, लाइक मेरे जो फ्रेंड्स ने बोला एंड जो नेल आर्टिस्ट एंड मेरी फ्रेंड ने बोला उससे मुझे इतना ही समझा है. ठीक है, एंड द डाउन साइड टू दिस इज दैट इफ इट इज नॉट डन प्रॉपर्ली, अगर एक प्रॉपर प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट ने तुम चिपकाया नहीं प्रॉपर्ली, इट कैन एक्चुअली डैमेज योर नेल्स. अब जो नेक्स्ट होता है वो जेल एक्सटेंशंस होता है. जेल एक्सटेंशंस आर मोर लाइक द लाइटर वर्जन ऑफ एक्रिलिक एक्सटेंशंस एंड दे आर मोर फ्लेक्सिबल देन एक्रिलिक एंड दे आर क्योर्ड अंडर यूवी और एलईडी लाइट. बट द इशू इज दे आर वेरी लाइट, मतलब ऐसा बहुत लाइट वेटेड एंड बहुत फ्लेक्सिबल है. तो अगर तुम कुछ हार्ड चीज कर रहे हो या फिर यू नो इफ यू स्क्रैचिंग समवन और फिर लिफ्टिंग समथिंग हैवी, चांसेस है कि वो ब्रेक हो सकता है एंड दैट कैन एक्चुअली डैमेज योर नेल. थर्ड जो होता है इट्स कॉल्ड एज पॉलीजेल एक्सटेंशंस. इट इज लाइक अ हाइब्रिड ऑफ एक्रिलिक एंड जेल एक्सटेंशंस. इट्स लाइटर देन एक्रिलिक बट हेवियर देन जेल एक्सटेंशंस एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ प्रॉपर नेल आर्टिस्ट. मेरी एक फ्रेंड ने करवाया था बट शी वॉज लाइक यू नो शी गॉट इट डन बाय अ प्रॉपर नेल आर्टिस्ट एंड शी वॉज लाइक यू नो वॉट, यू नीड अ प्रोफेशनल टू गेट इट डन
because if you do it by someone जो बहुत new है in this profession, it can actually make your nails look very bulky and fake. And fourth type का जो nails होता है, it's called as press on nails, जो मैंने करवाया है. And I feel this is the best. Like I chose this because you know it is great for first timers. बहुत ही light weight है, bulky नहीं दिखता है, fake नहीं दिखता है. And press on nails क्या होता है? It's like pre-shaped nails. तो आपके हाथ के हिसाब से, आपका हाथ का जो actual nails का जो design है, shape है, उसके हिसाब से इसको shape किया जाता है, and then they are glued to your actual nails. And this is why I chose it because it looked more natural, very lightweight, and ऐसा मुझे लग रहा ही नहीं कि कुछ नकली है. Now let me talk about nail salon में क्या हुआ, so that you know you are prepared in advance if you are planning to go. अभी सबसे पहले they do cuticle prep. अब cuticle क्या होता है? जो तुम्हारे nail के वहाँ पे जो ये दिख रहा है क्या, 1 सेकेंड, एक तो ये फोकस करने के लिए, हाँ, ये जो एक्स्ट्रा स्किन होता है ना, दैट्स कॉल्ड एज क्यूटिकल्स. सो बेसिकली वहाँ का स्किन को क्लीन करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्किन होगा तो कट करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि तुम्हारा नेल्स या फिर तुम्हारा जो प्रेस ऑन्स है, जो भी एक्सटेंशन है, प्रॉपरली बैठ पाए. क्योंकि अगर क्यूटिकल्स बराबर से क्लीन नहीं किया गया तो बहुत जल्दी लिफ्ट हो सकते हैं. एंड मैंने ऑलरेडी घर पे थोड़ा बहुत मैनिक्योर करवाया था खुद का, सो दिस प्रोसेस वॉज ईजियर फॉर मी. आफ्टर द क्यूटिकल प्रेप दे बफ योर नेल्स. अब बफिंग क्या होता है? बेसिकली तुम्हारे नेल में जो एक्सेस शाइन होता है ना, उनको स्क्रैप करके, हाँ, एज यू कैन सी द लोकेशन हैज चेंज बिकॉज अब दिन नहीं रहा, अब शाम हो चुकी है एंड डे लाइट नहीं है, तो प्लीज बेयर विद मी. अभी हमें रूम लाइट यूज करना पड़ रहा है. इट्स बिकॉज मुझे वो कॉल उठाना पड़ा. समटाइम्स आई गेट वेरी लेजी टू पिक अप कॉल्स, आई एम लाइक जस्ट डोंट कॉल मी, बट देन आई एम अगेन लाइक व्हेन आई लव पीपल सो मच, आई एम लाइक व्हाट, आई एम जस्ट गोना टॉक एंड देन आई फील गुड. ओके, सो नो कंप्लेंट्स, बट या द ओनली कंप्लेन इज कि अभी डे लाइट नहीं है एंड आई रियली लव शूटिंग इन डे लाइट. ओके, सो एनीवे, लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी वर सेइंग. व्हाट वाज आई सेइंग? बफिंग. ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप इज बफिंग. अब बफिंग में क्या होता है? तुम्हारे नेल्स को थोड़ा स्क्रैप करते हैं ताकि तुम्हारे नेल्स में जो एक्सेस शाइन है वो निकल जाए, ताकि वो ग्लू प्रॉपरली स्टिक हो जाए. ठीक है, एंड इसके बाद व्हाट डू? दे अप्लाई नेल डिहाइड्रेटर एंड नेल प्राइमर. ये दोनों स्टेप्स जरूरी होता है ताकि तुम्हारे नेल्स में से एक्सेस ऑयल निकले. अगर एक्सेस ऑयल नहीं निकला तो दीज एक्सटेंशंस कैन पॉप ऑफ क्विकली. अब एक बार बफिंग हो गया, उसके बाद दे प्रेजेंट यू दोस नेल टिप्स. ठीक है, एंड दे आर इन डिफरेंट साइजेस एंड बहुत लंबे होते हैं, जो उन लोग बाद में चेंज करते हैं. लाइक इफ यू वांट, तुम तुम्हारा नॉर्मल नेल लेंथ का भी साइज चूज कर सकते हो, तुम थोड़ा सा लंबा भी चूज कर सकते हो ना. एज यू कैन सी, मैंने आमंड एंड ओवल शेप के बीच में चुना है बिकॉज दैट इज मोर लाइक माई नेचुरल नेल शेप एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल. अलग अलग शेप्स में भी थे, समथिंग some were rectangular and everything, and that would have looked horrendous on my hand, so I did not go for it. अब इसके बाद क्या होता है? दे अप्लाई दी ग्लू एंड देन वो प्रेस ऑन चिपका देते हैं प्रॉपरली. ठीक है, कोई एयर गैप, एयर बबल्स कुछ भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक बार चिपका दिया, दैट्स व्हेन योर नेल्स आर सेट एंड आफ्टर दैट उन लोग शेप देने लगते हैं बिकॉज द नेचुरल प्रेस ऑन्स दैट दे हैव बहुत लंबे होते हैं, तो देन उनको काटना पड़ता है बेस्ड ऑन द डिजायर शेप एंड साइज दैट यू वांट. ठीक है, अब ये सब होने के बाद दे अगेन बफ दैट प्रेस ऑन्स, क्योंकि अभी नेल पॉलिश अप्लाई करना है, राइट. एंड नेल पॉलिश प्रॉपरली लगना चाहिए, तो थोड़ा सा वापस से उन लोग बफ करते, थोड़ा स्क्रैप वेप करते हैं. एंड देन आफ्टर दैट दे आस्क कि आपको कौन सा टाइप का नेल पॉलिश चाहिए. डू यू वांट टू गो फॉर न्यूड्स, डू यू वांट टू गो फॉर कैट आइज. अब मुझे इससे पहले पता नहीं था कि कैट आइज क्या होता है, बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि बेब गो फॉर कैट आई, इट विल लुक ऑसम. एंड उससे पहले आई वाज लाइक व्हाट द फक इज कैट आई, बट देन शी एक्सप्लेन दिस इज व्हाट कैट आइज इज. ठीक है, आई एम गोना ऐड मोर वीडियोज फॉर अ क्लियरर दिस, बट दिस इज व्हाट इट इज. एंड कैट आइज बेसिकली कैसे होता है? इसमें कलर चेंज होता है. लाइक एज यू मूव योर हैंड, डे लाइट में थोड़ा अलग कलर दिखेगा, नॉर्मल इसमें अलग कलर दिखेगा. एंड दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली वांटेड, क्योंकि मेरे जितने भी वेडिंग आउटफिट्स थे, मेहंदी, शादी, दे वो मोर लाइक लाइलैक, लैवेंडर, वो शेड में. तो आई वाज लाइक दिस इज परफेक्ट बिकॉज इसमें पिंक भी है, पर्पल भी है, एंड थोड़ा हाथ ऐसा किया तो ब्राउन भी दिखता है. ओके, एंड इट लुक्स अमेजिंग. आई एम नॉट गोना लाई, आई लव्ड इट. मुझे अभी भी याद है जब मैंने वो लगाए एक्सटेंशंस, I was like fuck, my hands look amazing. ठीक है, इससे पहले मैं नॉर्मल नेल पॉलिश डालती थी, मैं कभी चिप्ड रखती थी वो नेल पॉलिश को, बट दिस एक्चुअली लुक सो क्लासी एंड इट गिव मी दैट इट गर्ल वाला फीलिंग. मैं ऑलरेडी हाथ ऐसे करके बात करती हूँ, उसके बाद मैं और ऐसे करके बात करने लगी, एंड देन लास्ट में यूवी लाइट के अंदर तुमको तुम्हारा हाथ रखना पड़ता है ताकि वो बराबर से सेट हो जाए. आई जस्ट रियलाइज कि अभी टक टक टुक टुक काम कम हो चुका है, तो आई कैन जस्ट क्लिप दिस माइक हियर.
Hopefully I'm still very audible, which I know I am. ठीक है, अभी let's talk about how it feels living with these extensions. ठीक है, especially as a girl who has a 9 to 5 job, who does household chores, who goes to the gym and everything. ठीक है, अब जैसे ही मैंने extensions लगाए, आई वॉज लाइक मुझे बाल बांधना है. अब मेरा बाल एज यू कैन सी इट्स वेरी वेवी, तो बहुत जल्दी नॉट्स होते हैं, मेरे को प्रॉपरली ऐसा 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 करके बांधना पड़ता है. एंड दैट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज आई वॉज लाइक एक्टिंग लाइक ओ माई गॉड मेरे हाथ में क्या है, मैं ऐसे कर रही थी. मतलब आई मीन आई वॉज स्केर्ड, ओके, बट देन ऑब्वियसली आई गॉट यूज्ड टू इट. जीन्स का जिपर ऊपर करके वो बटन डालना वाज वेरी डिफिकल्ट. नाउ देयर आर गर्ल्स हु आर प्रोज, ओके, आई हैव सीन माय कलीग्स आल्सो जिनके पास एक्सटेंशन ऐसा टक टुक करते, कैसा करते मेरे को नहीं मालूम, मेरे को हो रहा नहीं था. एंड आई रियली वांट टू लर्न फ्रॉम देम कि बहन कैसे कैसे कर लेते हो तुम. ठीक है, तो ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था. एंड जब ये वेडिंग फियास्को स्टार्ट हुआ, मैं मेरे हाथ से खा नहीं पा रही थी बिकॉज इवन दो दीज कलर्स आर डार्क, ठीक है, बट व्हेन ईटिंग विद योर हैंड वो रेसिड्यू ना खाने का इधर रह जाता है. ठीक है, एंड फिर वो येलो येलो दिखता है, दैट जस्ट लुक्स वेरी अनहाइजीनिक एंड डर्टी. दैट इज अनदर रीजन इवन दो आई हैव ब्रिटल नेल्स और मेरा नाखून ग्रो नहीं करती हूँ बिकॉज गाइज आई एम सॉरी इफ यू आर वन ऑफ देम, बट जब कुछ कुछ लोग लंबा लंबा नाखून रखते हैं, दे ईट विद देयर हैंड एंड दे डोंट इवन क्लीन देयर नेल्स एंड पूरा वो डर्ट यहाँ पे जमा होता है ना, इट लुक्स वेरी शैबी एंड वेरी डर्टी. एक तो एक्सटेंशन लगाओ या फिर चिप्ड एंड प्रॉपर नेल्स रखो यार, मतलब छोटे से रख दो अच्छे से, कुछ इशू नहीं है, बट ऐसे लंबा सा रख के गंद मत मचाओ सीरियसली. सो इसलिए मुझे फिर स्पून से खाना पड़ रहा था. अब मैं चपाती वपाती स्पून से कैसा खाने का, मैं पिज्जा कैसा स्पून से खाने का, सो दैट वाज डिफिकल्ट. इफ आई वांट टू ईट इडली और मेंदू वड़ा में कैसा स्पून से खाने का, सो ये सब थोड़ा इश्यूज हो रहा था. But apart from that, I feel like it will look really good for the मतलब see normally भी मैं ऐसे से बात करती हूँ, I feel confident, but with this ना थोड़ा और तुम्हारा flex ज़्यादा है, like you just go and you purposely talk with your hands, you're like हाँ अच्छा, like I was doing this, you know. So pros है, but now let's talk more about the cons because that's what I've faced, okay. नाउ फर्स्ट कॉन कब हुआ पता है क्या, जब मैं जिम गई. ठीक है, जब मैं जिम गई, नाउ द थिंग इज व्हेन आई टेक डंबल्स एंड ऑल, आई हैव टू होल्ड द डंबल्स लाइक दैट और व्हाटएवर. अब मैं ऐसा कर रही हूँ ना, तो वो बेंड हो रहा था, तो मेरी ना थोड़ी फट गई बिकॉज अगर बेंड होके टूट गया, मेरा एक्चुअल नेल्स पे भी इशू हो सकता. सो दैट वाज अ बिट स्कैरी, सो आई हैड टू बी वेरी केयरफुल विद द डंबल्स एंड लेट्स जस्ट फेस इट, आई कुडंट वर्क आउट. शायद मेरे को और छोटा इसका मेरे को और शेप थोड़ा छोटा करना चाहिए था, बट देन आई डोंट नो मैन, नेचुरल नेल्स ही रखना. दूसरा जब मैं मेरे नेचुरल नेल्स पे नेल आर्ट कर दूं इंस्टेड ऑफ एडिंग एक्सटेंशन, तो वो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट हुआ. अब कुकिंग एंड क्लीनिंग के टाइम में मेरे को बहुत तकलीफ हुआ बिकॉज दे वर टेलिंग मी लाइक द नेल आर्टिस्ट एंड माय फ्रेंड, दे वर टेलिंग मी भाई कुकिंग एंड क्लीनिंग एंड बर्तनों तो कर ही मत, बट ऑब्वियसली माय मॉम शी विल बी द शिट आउट ऑफ मी, तो शी वाज लाइक भाई बर्तन कौन करेगा. शी वाज हेल्पिंग मी, शी वाज लाइक ठीक है तेरे नेल्स है तो मत कर, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार. तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने ना वो स्कॉच ब्राइट का ना ग्लव्स मंगाया एंड देन आई वाज वॉशिंग वेसल्स विद दैट, ताकि हाथ में वो साबुन वाबुन जाके वो थोड़ा सा गम लूज ना हो, जबकि ऐसा होगा नहीं, गम नहीं ग्लू. ठीक है, देन एक दिन क्या हो गया, आई वाज ट्राइंग टू ओपन द किचन स्लैब. अब किचन स्लैब इतना मजबूत है कि यू हैव टू होल्ड इट एंड हैव टू पुल इट, ओके, और मैंने ऐसा जोर से खींचा कि मेरे को टक करके आवाज आया. आई वाज लाइक व्हाट द फक हैपेंड एंड देन दिस हैपेंड. कैन यू सी? Yeah, this happened and this was not like that. It looks good now, but तभी ना ऐसा आधा नाखून मेरा टूट गया था ना. I was like shit, what am I supposed to do? फिर वो नॉर्मल इससे मैं फाइल करके उसको शेप भी नहीं दे पा रही थी. देन मेरे को उसको सिजर से कट करके उसको प्रॉपर्ली शेप देना पड़ा बिकॉज आई वाज लाइक जस्ट बिकॉज मैंने एक नाखून टूटा, आई एम नॉट गोना रिमूव एवरीथिंग बिकॉज आई हैव पेड फॉर इट. एटलीस्ट 2-3 हफ्ता अच्छे से टिकने दे. अपार्ट फ्रॉम दैट द ग्लू इज स्ट्रॉन्ग, मुझे ऐसा कुछ रिमूव ज्यादा फीलिंग नहीं है. अभी 3 हफ्ता ऊपर हो चुका है. आज एक और इंसिडेंट हुआ. टुडे आई वाज ट्राइंग टू अगेन ओपन द डोर बाहर का एंड ऐसा प्रेशर आया ना मेरे ये फिंगर पे कि मेरे को अभी दुख रहा है, लाइक इट्स पेनिंग, यू नो. नाउ आई एम लाइक एंड अभी क्या हो रहा है, मेरा ये ग्रो हो रहा है नेल्स, राइट, तो अभी वो आगे आ रहा है. सो एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज लुकिंग राइट नाउ, है ना, आगे यहाँ पे नया स्किन आ रहा है एंड इट्स ग्रोइंग. सो नाउ इट्स लुकिंग बहुत ज्यादा एंड मेरे को थोड़ा तकलीफ हो रहा है नॉर्मल चीजें करने में, लाइक कपड़ा धोना हो या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना हो, कुछ भी करना हो भाई, मेरे को तकलीफ हो रहा है. सो नाउ आई एम लाइक, यू नो व्हाट, आई एम गोना गेट इट रिमूव्ड. So yeah, I mean, what is the final verdict? It looks elegant, it looks very classy, you feel more confident, but
इट इज़ गुड फॉर पीपल जिनके आसपास बहुत ही लोग हैं काम वाम करने के लिए एंड दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट. और मे बी इट्स फॉर पीपल हु नो हाउ टू डू द चोर्स एंड यू नो हैंडल देयर नेल्स, बिकॉज आई वाज सीइंग सो मेनी वीडियोस कि भाई कैसे करना है. सम वो लाइक अच्छा यू नो कैन अगर ओपन करना है तो उंगली से मत करो, कैन मतलब दे वर यूजिंग सम इक्विपमेंट्स टू डू बेसिक चोर्स इंस्टेड ऑफ देयर हैंड्स. आई एम लाइक भाई अभी ये सब कौन खरीद के ये सब करके बैठेगा. आई मीन आई डोंट नो, इट वाज जस्ट वेरी फनी फॉर मी. Okay, so if you are a person जिसको घर का बहुत काम करना होता है, जिसको हाथ वाथ यूज करना, खाना बनाना है, then I feel these extensions may not suit your lifestyle. But if you're someone who doesn't have to do all these things, then definitely get it, because it is definitely an investment. It looks good, your hands look pretty. Okay, so yeah, I mean, am I gonna get it done again? My answer is no. And it's not because it didn't look good or something. The nail artist, she did an amazing job. She exactly understood the assignment, and I'm very happy that I got it done from her, because you know कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे कुछ बाकी friends का experiences था कि they went to a nail artist and they told कि मुझे exact design चाहिए and she didn't give her a feedback. It's very important to give a feedback to your client saying कि नहीं यार भाई ये तेरे पे सूट नहीं करेगा, तेरा हाथ का shape के हिसाब से let me recommend you something better. And this is what she exactly did. She recommended me, you know, what will suit me, what colors will suit me and everything, and that is good. I feel then तुमको बार बार अभी जाने का मन करता है, but I just feel lifestyle के हिसाब से it's not suitable. अभी इसके बाद मैं वापस से extensions तो लगाऊंगी नहीं, but I will definitely do nail art on my natural nails, and अभी I'm gonna get it removed because see my this finger is already paining क्योंकि वो bend हो गया है, दुख रहा है मेरे को, and ये टूट गया है. So I mean it's already almost अभी 4 हफ्ता होने को आ रहा है, and अभी जिम भी मेरे को तकलीफ हो रहा था. I'm just gonna get it removed. So yeah, that was my experience with nail extensions, and I really hope it was helpful. As I said, मैं ये वापस नहीं करने वाली हूँ, but probably if and when I get married, I might do it, because then you know हाथ के फोटोशूट होते रहता तो तभी हाथ अच्छे दिखने चाहिए ना, तो तब मेरे को थोड़ा करवाऊंगी, 1-2 दिन के लिए करवाऊंगी, फिर निकाल दूंगी, because then I'm like क्या ही जरूरत है. So yeah, I really hope you found this video helpful, and if you did, you know what to do. Like, share, hype, comment, subscribe, so that you know it can be helpful for people who are trying to get their nail extensions done. And let me know your thoughts in the comments. You know, what do you think about nail extensions? Do you do it regularly? If yes, then how do you manage to do daily ka kaam? And if you don't, what are the other things that you do to, you know, keep your nails healthy and classy, etc, etc. And with that, we come to the end of the video. Thank you so much for watching. I will see you again in the next one. Bye bye.